Good morning everyone. Today I am going to conduct revision class of chapter 3rd from your book Footprints. The chapter is The Midnight Visitor. At first I will explain the summary of this chapter. After that I will go through difficult words, and at last question answers. So as I have taught you earlier, this story is about a wise secret agent named Ozable, and another character in this story is a writer who wishes to write about some secret agents or some spies. Therefore, he approached Ozable and went to visit him. Ozable invited him in a French hotel where he was staying those days. He spends time with Ozable. When Fowler spent time with Ozable, he realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined, and that he was bored. Ozable also realizes the feelings of Fowler and told that soon he would be looking at a report that would change the country's future. Ozable told that soon he would be looking a report, a very important piece of information that can affect the course of history of our country. Then Ozable takes Fowler to his room, and when they entered the room and switched on the light, they found a man who was standing in the middle of the room carrying an automatic pistol in his hand. Ozable immediately recognized him. He was Max. But Ozable had never expected him in his room. Max warned him. Max came there to collect that urgent piece of information about the missiles. And Ozable told that information would arrive in about 30 minutes. This was the first adventure that Fowler had expected. This was the first authentic thrill that Fowler had realized that day. While they were talking, Ozable started with a story about how a guy had entered from the balcony last month in his room. He raised the issue with management of the hotel
but they hadn't done anything. So Ozebel became very angry. He told that that balcony was not the part of my room, but my room is a part of a big apartment. And a man entered into the empty room of this apartment and jumped into balcony, and through balcony he entered into my room through the window. Fowler had decided, Ozebel had decided to raise the issue with management of the hotel. After a while, there was a loud knocking at the door. Max got scared. Max, pointing his gun towards them, said that he would be waiting in the balcony. As Ozebel told that the policemen were knocking the door, as he had informed them to gain extra protection for that urgent information about missiles. Max didn't want to face the policeman. Therefore, he moved towards the balcony. He opened the window and jumps out of the window. He opened the window and jumps out into the balcony. With a loud scream, he dropped. When the door opened, there was a waiter who had brought the wine that Mr. Ozebel had ordered. He kept the bottle, tray, and glasses on the table and leaves. But Fowler is surprised and asked about the police. Ozebel replied that there was no police. Then Fowler asked, what about the person who was waiting in the balcony outside the window? Ozebel replied that the person would not return and that there was no balcony there. Ozebel had just made a false story to divert the attention of Max, to get rid of him. This shows the quick wit and presence of mind of Ozebel. Thus, Ozebel applied his wit. He had shown himself as a clever spy, as a clever secret agent, witty secret agent, and saved himself from a very dangerous situation. Now let me explain the summary in Hindi. ये कहानी एक बहुत ही चतुर चालाक एक जासूस ऑज़ेबल के बारे में है, और दूसरा जो इसमें कैरेक्टर है उसका नाम है फॉलर. फॉलर एक राइटर रहता है जो किसी जासूसी कैरेक्टर के बारे में कुछ लिख रहा होता है, तो वो एक रियल जासूस से मिलना चाहता है, इसलिए वो ऑज़ेबल से मिलने आता है. ऑज़ेबल उसको अपने होटल में बुलाता है जहां आजकल वो रह रहा होता है. फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर एक कमरे में ऑज़ेबल रहता है. फॉलर आता है, मिलता है उससे. थोड़ी देर तक वो लोग होटल के लॉबी में बैठते हैं. उसके बाद उस अंधकार में पतले सकरे गलियारे से होते हुए ऑज़ेबल के कमरे तक वो दोनों जाते हैं.
जैसा कि फॉलर ने सोचा था कि एक स्पाई से मिलने पर कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटीज महसूस होंगी, एडवेंचरस और रिस्की एक्टिविटीज दिखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि हम एक स्पाई के बारे में सोचते हैं। एक स्मार्ट, विटी, हैंडसम, लेकिन ऑजिबल का फिजिकल अपीयरेंस भी वैसा नहीं था। वो तो एक भारी भरकम मोटा सा आदमी था, बहुत मोटा आदमी था। ऑजिबल को भी महसूस हुआ कि फॉलर ने जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि जल्दी ही तुम एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में जानोगे जो हमारे देश के फ्यूचर को चेंज करने की क्षमता रखता है, फ्यूचर और पास्ट दोनों को प्रभावित कर सकता है। कितनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ऑजिबल उसको अपने कमरे तक ले जाता है और जो ही कमरे में वो इन करके लाइट ऑन करते हैं तो कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा होता है, अपने हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए। ऑजिबल पहचान लेता है ये मैक्स था, लेकिन ऑजिबल ने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि मैक्स ऐसे उसके कमरे में खड़ा मिलेगा, इस तरह से उससे मुलाकात हो। मैक्स भी उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आया था। ऑजिबल ने कहा कि करीब 30 मिनटों के बाद वो इन्फॉर्मेशन आएगा। This was the first adventure out of many that Fowler had expected when he had thought of meeting a secret agent. While they were talking, Ausable started with a story about how a guy had entered from the balcony last month below his room. तो ये फॉलर के लिए एक पहला एडवेंचरस एक्सपीरियंस था, एक जेन्युइन थ्रिल, जैसा कि उसने पहले सोच रखा था। अब जो ही वो बातें आगे कर रहे थे, अचानक से ऑजिबल बालकनी के बारे में कुछ बातें बताने लगा। बोलने लगा कि मेरे कमरे की खिड़की से लगी हुई जो बालकनी है, मैंने पिछले महीने भी एक आदमी उस बालकनी से होता हुआ चुपके से मेरे कमरे में घुस आया था। मैंने होटल मैनेजमेंट को इस बारे में बताया भी था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है। ये बातें होती रहती हैं कि अचानक से दरवाजे पर तेज तेज नॉक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैक्स डर जाता है, पूछता है कौन है भाई? तो ऑजिबल ने कहा पुलिस वाले हैं, क्योंकि मैंने ही कहा था कि वो इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैक्स तो पुलिस के सामने होना नहीं चाहता है। वो इन दोनों को गन पॉइंट पर रखते हुए कहता है कि भाई मैं बालकनी में छुपने जा रहा हूं और पुलिस आए तो आप उसे समझाकर भेज देना, और अगर मेरे बारे में आपने पुलिस को बताया तो मैं आपको शूट कर दूंगा। जो ही दरवाजे का नॉब टर्न होता है, मैक्स जो है वो छलांग लगाता है। एक बड़ी सी चीख उसके मुंह से निकलती है, और जब दरवाजा खुलता है कमरे तो पुलिस नहीं होता है, होती है एक वेटर होता है जो अपने साथ कुछ ड्रिंक्स वगैरह लाता है, जैसा कि मिस्टर ऑजिबल ने उसको पहले ऑर्डर किया था। वो बोतल, ट्रे, ग्लासेस टेबल पे रखता है और फिर चला जाता है। फॉलर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। वो पूछता है कि भाई तुमने तो पुलिस के बारे में बताया था। तो ऑजिबल कहता है देयर वाज नो पुलिस, यहाँ कोई पुलिस नहीं थी। मैंने तो बस एक कहानी बनाई थी बालकनी के बारे में, पुलिस के बारे में, मैक्स के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। इससे यह पता चलता है कि ऑजिबल ने अपनी चतुराई से मैक्स से छुटकारा पाया और उसने अपने आप को साबित किया कि वो एक सही मायने में स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है। This is how Oswald outwitted Max
and saved himself from a very dangerous situation. So it is the summary of the story, The Midnight Visitor. Now I will explain the question answer, so listen to me carefully. At first, difficult words. Okay. First word, that is musty, M-U-S-T-Y. It means a stale, muddy or damp smell. दुर्गंध जिसको हिंदी में बोलते हैं, that is called musty. A stale, muddy, M-O-U-L-D-Y और damp, D-A-M-P, damp smell. नेक्स्ट वर्ड इज कॉरिडोर. कॉरिडोर हम जानते हैं जैसा कि गलियारा होता है. ए लॉन्ग पैसेज इन ए बिल्डिंग, उसको कॉरिडोर बोलते हैं. फिर है ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब डार्क होता है. स्कैर्सली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं, ऑलमोस्ट नॉट. एसेंट जो वर्ड है वो किसी भाषा के शब्दों को प्रोनाउंसिएट करने का अपना खास तरीका होता है. तो ए डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग ए लैंग्वेज, इसको एसेंट बोलते हैं. पैसेबली का मतलब होता है वेल एनफ, वेल एनफ. एस्पियोनेज का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्पाइंग, जासूसी का काम, एक्ट ऑफ स्पाइंग. इनविजन का मतलब होता है इमेजिन, विजुअलाइज, इमेजिन, विजुअलाइज. स्लो, PPY, केयरलेसली ड्रेस्ड, केयरलेसली ड्रेस्ड. प्रोज़ाइक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, PROSAIC, प्रोज़ाइक, ऑर्डिनरी. चकल्ड, लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग वंस माउथ, बिना मुंह खोले हुए हंसना, चकल्ड. डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड विथ समवन और समथिंग, किसी से निराशा हाथ लगना. हमने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, इसी को डिसइल्यूजन. नेक्स्ट वर्ड्स, ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन होता है, ओरिजिनल. वीज्ड, WHEEZED, वीज्ड, हुए बोलना, हांफते हुए तेज तेज बोलना. स्लेंडर, SLENDER. स्लेंडर का मतलब होता है ग्रेसफुली थिन. मतलब पतला सा हो लेकिन खूबसूरत हो, आकर्षक हो, उसे स्लेंडर बोलते हैं. काउंटेनेंस, ए पर्सन्स फेस और फेशियल एक्सप्रेशन. ए पर्सन्स फेस और फेशियल एक्सप्रेशन, इसको काउंटेनेंस बोलते हैं. मेनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर या थ्रेटनिंग. मर्मर्ड का मतलब होता है से इन अ लो वॉइस, से इन अ लो वॉइस. रेज द डेविल, इसका मतलब होता है मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस. रेज द डेविल का मतलब है मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस. ग्रिमली का मतलब है इन अ वेरी सीरियस ग्लूमी मैनर, इन अ वेरी सीरियस मैनर. ग्रिमली, GRIMLY. न्यूसेंस, NUISANCE.
न्यूसेंस का मतलब है ए पर्सन और थिंग कॉजिंग डिस्टर्बेंस, बेवकूफ़ी भरी हरकतें, उसे न्यूसेंस बोलते हैं। ए पर्सन और थिंग कॉजिंग इनकन्वीनियंस, डिस्टर्बेंस और एनॉयंस, इसको न्यूसेंस बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ए चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड। पास्ट की मास्टर की को बोलते हैं। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक देखना, टू टेक अ सडन लुक, ब्रीफ लुक, हरिड लुक, एक झलक देखना। टेक अ सडन लुक, हरिड लुक, ब्रीफ लुक। स्टीफली का मतलब होता है नॉट इन रिलैक्स्ड और फ्रेंडली मैनर। STIFFLY, STIFFLY, स्टीफली का मतलब होता है नॉट इन रिलैक्स्ड और फ्रेंडली मैनर। वेव्ड बोलते हैं हाथ हिलाकर ऐसे अभिवादन करना, इशारा करना, इसको वेव्ड बोला। मूव इन स्वेइंग मोशन, स्वे मतलब लहराना, टू मूव टू एंड फ्रो विथ अ स्वेइंग मोशन, इसी को वेव बोला जाता है, हाथ लहराना हवा में। गेस्चर बोलते हैं अपने शरीर के किसी बॉडी पार्ट से मूवमेंट करके इशारा करना, गेस्चर बोला जाता है। ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। गेस्चर का मतलब हुआ ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। एविली, EVILLY, इवली का मतलब मोरली रॉन्ग और बैड, मोरली रॉन्ग और बैड। स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है रैपिडली, स्विफ्टली यानी रैपिडली। सिल, SILL, जैसे खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह का जो चौखट होता है उसे सिल बोलते हैं, SILL। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? तो द हॉरिजेंटल पीस beneath a window door, the horizontal piece of wood beneath a window and door. श्रीली, SHRILLY, श्रीली मतलब होता है इन ए हाई पीच, बहुत तेज आवाज में, इन ए हाई पीच। डेफ्टली, DEFTLY, डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली। स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब होता है रुक रुक के बोलना। टू स्पीक विथ ब्रेक्स एंड पॉजेज, टू स्पीक विथ इनवॉल्यूंटरी ब्रेक्स एंड पॉजेज। स्टैमर्ड, घबराहट के साथ रुक रुक के बोलना। टू स्पीक विथ इनवॉल्यूंटरी ब्रेक्स एंड पॉजेज। साइड, SIGHED, टू टेक डीप ब्रेथ। So these are the difficult words of this chapter, the midnight visitors. Now come to the question and answers. So first question of this chapter is, how does Oswald manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? ऑज़बल ने मैक्स को कैसे विश्वास दिलाया कि इस कमरे से अटैच एक बालकनी भी है? तो
When Oswald says that Oswald manufactured a false story and says that he had complained to the hotel staffs earlier about someone had entered from the balcony. ऑजबल ने बोला कि भाई मैं पहले ही होटल स्टाफ को कंप्लेन कर चुका था कि कोई मेरे कमरे में बालकनी से घुस आया था. Max started to think about balcony. That had he known there was a balcony, it would have been much easier for him to get to Ozebel's room. मैक्स सोचने लगा कि यदि वो बालकनी के बारे में जानता तो ओजेबल के कमरे में घुसना बड़ा आसान था. Thus Ozebel managed to make Max believe that there is a balcony attached to his room. And when he knew about the policemen were knocking at the door, Max became very nervous and he thought that he would wait for the police in the balcony. Therefore, he jumped out of the window. But there was no balcony. The story of balcony was just manufactured by Ozebel to get rid of Max. तो सबसे पहले तो ऑजबल ने बालकनी के बारे में झूठ मूठ की कहानी बनाई कि भाई 2 महीने पहले ही मैं इन होटल स्टाफ को बोल चुका था कि भाई मेरे कमरे में कोई बालकनी से घुस आया था, तो आप कृपया उस बालकनी को बंद करें. लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था. तो मैक्स सोचने लगा कि अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो ओजेबल के कमरे में घुसना मेरे लिए आसान होता. और जब दरवाजे पे किसी ने नॉक किया तो ओजेबल ने बोला कि भाई ये तो पुलिस वाले हैं, मैंने बुलाया था उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए. तो ओजेबल मैक्स सोचने लगा कि चलो ठीक होगा कि मैं बालकनी में जाकर छुप जाऊं. लेकिन एक्चुअल में तो वहां कोई बालकनी था नहीं. तो इस प्रकार से ओजेबल ने मैक्स को विश्वास दिलाया कि भाई इस कमरे से अटैच एक बालकनी भी है. अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. जैसा कि सीक्रेट एजेंट के बारे में फॉलर ने या हम लोग भी सोचते हैं वो बड़े हैंडसम, स्मार्ट, तेज तर्रार व्यक्ति होते होंगे, लेकिन ओजेबल का जो फिजिकल अपीयरेंस था, ही वाज ए वेरी फैट पर्सन and could only speak French passively, although he had been living in Paris for over 20 years. 20 वर्षों से वो पेरिस में रह रहा था. Well enough बोल, उसके आवाज में अभी भी अमेरिकन एसेंट था. और जैसा कि हम सोचते हैं कि भाई कोई जासूस होता है, उसको महत्वपूर्ण सूचनाएं देने खूबसूरत लड़कियां होती हैं, दूसरे जासूस होते हैं, वो उनको पास करते हैं. लेकिन ओजेबल क्या कर रहा था, वो तो बस फॉर्मल टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहा था बैठकर. तो इन तरीकों से, जैसा कि फॉलर ने या हम लोग सोचते हैं एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे अदर सीक्रेट एजेंट्स आर. So how is Ozebel different from other secret agents? So Ozebel is different from other secret agents because he was very fat and could only speak French. His voice still had an American accent. He used to receive message via telephone instead of some other secret agents or dark-eyed beauties. So he was very different from the way other secret agents are. आप आंसर को अच्छे से समझो. आंसर तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. तो फॉलर इज अ यंग राइटर हु कम्स टू मीट ओजेबल. फॉलर एक यंग राइटर था जो ओजेबल से मिलने आता है. At first he was getting completely bored because he didn't find anything as he thought earlier about a secret agent. Ozebel also felt
and assured him that there would be an important information, and that information was such important that it could change the past and future prospect of our country. That information was regarding some missiles. As soon as they entered into Ozibel's room and switched on the light, Fowler found his first authentic thrill of the day. They found a man who was standing in the middle of the room carrying an automatic pistol in his hand. That was his first authentic thrill of the day. तो फॉलर का पहला ऑथेंटिक थ्रिल उस दिन का क्या था? पहले तो बहुत बोर हो रहा था। जैसा उसने सोचा था ऑजिबल के बारे में, एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं मिला। जो ही कमरे में वो लोग गए, लाइट ऑन किया तो कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था अपने हाथ में ऑटोमेटिक गन लेकर। तो यही ऑथेंटिक थ्रिल उसके लिए डे का था, उस दिन का था। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? तो मैक्स हैड गॉट इन विद अ मास्टर की। मैक्स हैड गॉट इन विद अ मास्टर की। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन? ऑजिबल सेज दैट ही थॉट दैट मैक्स हैड गॉट इन थ्रू द बालकनी। ऑजिबल कहता है कि भाई मैंने तो सोचा था कि तू बालकनी से आए होंगे। And he explained, he manufactured a story about balcony that last month someone had entered into his room through the balcony, and balcony was just opening after the single window of his room. He had already raised this issue to hotel staffs, to hotel management, but they didn't anything. Therefore, Ozibel also sowed his anger and annoyance. And he assured Max that he had thought that Max had got in through the balcony. तो हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन? तो ऑजिबल ने कहा कि भाई मैंने तो सोचा था कि मैक्स तुम तो बालकनी से आए होगे, और बालकनी के बारे में उसने कहानी भी बनाई। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो गए। आपका जो बुक में टेक्स्ट में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो यही 5 क्वेश्चन दिए गए हैं बनाने के लिए। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं इसका। अब आप इसको ठीक से पढ़ें, इसका फेयर कॉपी कंप्लीट करें, वर्ड मीनिंग का लिस्ट बनाएं। अगले वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट बुक का 4th चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, तो आप उसको पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।